نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے FM ریڈیو کی اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہوئی ہے ایک ایسی ہستی جنہوں نے فیض صاحب کو بے حد ہی قریب سے جانا ہے، اور آپ ہے مشہور گلوکارہ زہرہ حسن۔ انہوں نے فیض صاحب کی غزلوں کو موسیقی میں بے حد ہی خوبصورتی سے پرویا ہے۔ محترمہ زہرہ حسن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا خوش آمدید ہے۔ جی شکریہ۔ فیض احمد فیض کے کلام کو پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے شاعری کو زندگی سے جوڑ دی۔ ان کی شاعری ہر خاص عوام میں بے حد مقبول ہے، اور شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج بھی عوام انہیں اتنی عزت دیتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ بے شک ویسے فیض احمد فیض کی بے شمار تحریریں ہیں، اور جو سب سے مشہور ہیں وہ ہے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، جو بے حد ہی قابل تعریف ہیں۔ دیکھیے، نقش فریادی کی جتنی بھی غزلیں اور نظمیں ہیں، ان میں تو ذاتی زندگی کے پیار و محبت کی باتیں ہیں، لیکن جب ان کی ملاقات راشد جہاں سے ہوئی اور انہوں نے فیض کو کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھنے کو دیا، تب سے فیض نے محسوس کیا، اور خود راشد جہاں نے ان سے کہا بھی کہ کہاں ذاتی زندگی میں پھنسے ہوئے ہو، پوری دنیا، پوری عوام کے دکھ درد کو بھی دیکھو۔ تب جا کر انہوں نے دونوں ذاتی اور عوام کے دکھ درد کو ملانا شروع کیا، اور کہاں ملا کہ دنیا کے دکھ درد کی طرف جھکتے چلے گئے، زندگی بے حد قریب سے دیکھنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رومانیت حقیقت میں تبدیل ہو گئی۔ کیا خوب کہا انہوں نے اپنی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کے راحت کے سوا۔ سبحان اللہ، بے حد عمدہ۔ تو چلیے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ تو زہرہ صاحبہ، اگر فیض احمد فیض کے فارسی کلام کی بات کریں، یعنی کافی لوگوں کو فارسی نہیں آتی، لیکن پھر بھی ان کی شاعری کو سننے کے بعد، حالانکہ بہت مشکل ہے، لوگ اپنے آپ کو ان کے کلام سے جوڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دراصل دیکھیے، صرف فیض ہی کی بات نہیں ہے، غالب کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ غالب ہی کیوں، علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ میری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ وہ روایت جو غالب نے قائم کی تھی، جو علامہ اقبال تک پہنچی، اور علامہ اقبال سے آگے بڑھ کر فیض تک پہنچی، اور فیض تو اس روایت کے سب سے نمائندہ شاعر ہیں، 20ویں صدی کے ہیں۔ بے شک۔ تو ان تمام شعراء کے یہاں وہی فارسی آمیز شاعری آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی، لیکن اس فارسی آمیز شاعری وہ عام لوگوں کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ وہ مشکل الفاظ ان کے تحت رہ نہیں جاتے ہیں۔ جب غالب یہ کہتے ہیں قدو گیسو میں کیس و کہکان کی آزمائش ہے، قدو گیسو میں کیس و کہکان کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے، اسی کی روایت کو جو علامہ اقبال آگے بڑھاتے، اور اتنے فارسی کے الفاظ ہیں، لیکن کہیں مشکل کا احساس نہیں ہوتا، اور وہی جھلک فیض کے یہاں تو نہ صرف فارسی ہے بلکہ عربی کے الفاظ بھی ہیں۔ فیض صاحب جو عام آدمی کی بات کرتے ہیں، شاید اسی لیے عام آدمی ان سے جڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ معزز سامعین، فیض احمد فیض نے محبت اور تحریک سے جڑی کافی کلام لکھے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی محترمہ زہرہ حسن کو سننے کا موقع ملے گا۔ آپ
तशरीफ़ फरमा हुए बेहद मस्कूर और ममनून हैं हम। इनायत है आपकी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, चलते चलते सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इंसानियत के मुख्तलिफ रंग और बू से भरपूर है। कहीं इश्क है तो कहीं मज़दूर का दर्द, कहीं पैगाम आज़ादी है तो कहीं नाराए इंक़लाब। कुल मिला के उनकी शायरी पर इंसानियत के दर्द और गम के तर्जुमान है, और इसीलिए आज भी फैज़ अहमद फैज़ इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद, एक रोशनी बनकर हम सब के दिलों में सदा रहेंगे। इसी छोटी सी मुलाकात के बाद अपनी मेज़बान कुर्रतुल ऐन को दीजिए इजाज़त। FM रेडियो के का साथ देते रहे, हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, ज़ब्त का हौसला नहीं बाकी। एक तेरी दीद छीन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अब झारखंड SSS की बारी है। झारखंड SSS सामिया कुतुबाली और सानिया कुतुबाली। सामिया और सानिया, अच्छा ये हो गए हैं माशाल्लाह। मुहतरम सामीन, आदाब। हर हफ्ते की तरह आज भी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी मेजबान सामिया। आप हम FM रेडियो सुन रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है अदब ज़िंदगी। आज हम जिस अदीब के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं वो अरसा जदीद की एक बहुत मकबूल शायर है और जिनका नाम फैज़ मोहम्मद खान है, मगर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से मशहूर है। फैज़ का एक मकबूल शेर पेश खिदमत है। गलों में रंग भरे याद लो बाहर चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले। सामीन इकराम, हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे स्टूडियो पर एक मेहमान आए हुए हैं जिनसे हम फैज़ के मुतालिक गुफ्तगू करने वाले हैं। तो ताख़ीर न करते हुए आइए उनसे मुतालिक चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सामीन को अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम अहमद रज़ा है। तो इख्तियार रज़ा साहब, आप ज़िंदगी में क्या करते हैं? मैं कपड़ों का ताजिर हूँ और पाकिस्तान में बहुत सी दुकानें हैं। तो आपका फैज़ के वतनी अजीज से ताल्लुक़ है? जी सही फरमाया आपने। ताजिर होते हुए भी आपको शायरी से उन्नस है? जी दर हकीकत मेरे अब्बू खुद एक बड़े शायर थे। मेरे बड़े भाई ने उनकी पैरवी की, मगर मैंने तिजारत का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन फिर भी शायरी से बहुत लगाव है। वाह, बहुत खूब। आप किस शायरी की शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो मुझे बहुत से शायरों की शायरी पसंद है, मगर ख़ास तौर पर इकबाल और फैज़ की शायरी से एक ख़ास लगाव है। चूँकि मैंने 3 मरतबा फैज़ से मुलाकात की और उनसे खुद अशआर सुनने की मौका मिला, तो मैं उनकी शायरी को अभी तक ज़्यादा सुनता हूँ। वाह, फैज़ का कौन सा शेर आपको ज़्यादा महबूब है? तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगती है, तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगती है, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगती है। वाह, दिल खुश कर दिया आपने, जबरदस्त शेर है। आप सभी को बता सकते हैं कि फैज़ ने अपने बेहतरीन नज़्में किस ज़माने में लिखी? जी दरअसल 1951 में फैज़ लियाकत अली खान के हुकूमत के तख्ता उलटने की साजिश में गिरफ्तार कर लिए गए। ये केस रावलपिंडी केस के नाम से मशहूर रहे। वो 4 साल 1 माह के लगभग जेल में रहे और जिसमें 3 महीने कैद तन्हाई की सजा भी शामिल थी। उनकी बेशतर नज़्में इसी ज़माने कैद की यादगार है और बेहतरीन नज़्में इसी ज़माने में लिखकर उर्दू निज़ाम निगारी के सरमाए में इजाफा कर दिया। वो जेल ही में थे कि उनका मजमुआ कलाम दस्ते सबाह मंजरिया पर आया। मुझे उस ज़माने की नज़्म निसार में तेरी गलियों के एह वतन जहाँ बहुत पसंद है। हाँ वाकई उस नज़्म में वतन मोहब्बत का शदीद इजहार है। आप सभी को बताएंगे कि फैज़ का असर महबूब कौन था? सिर्फ नाज़ुक या वतन? फैज़ के यहाँ हम में जाना और हम में दौड़ना एक ही पैदल में यकजा है। उन्होंने मोहब्बत और इनकलाब के तराने बैक वक्त गुनगुनाए हैं।
नौजवान लोगों के लिए मौजू है। जी बिल्कुल, फैज अपनी शायरी के जरिए क्लासिकी लफ्जों और उनकी आहंग को अपने तकय्युल की आंच और अपने एहसास को जज्बे के रंगों के साथ नई नस्ल को इस तरह सौंपते हुए नजर आते हैं कि बड़ी नियमत लगती है। असर हासिल की शोहरा का फैज और उनकी शायरी के बारे में कहना है कि फैज की शायरी में तासिर, ताजगी और नजाकत पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी कलाम को आज भी लोग बहुत मशराए राह समझते हैं। वाह, बहुत खूब। अख्तर रज़ा साहब, आपने तो मुझे और सामीन को भी हैरत ज़दा कर दिया। ताजिर होते हुए भी फैज के बारे में इतनी सारी मालूमात, वाकई काबिल सताइश है आप। शुक्रिया, ये तो खुदा का कर्म है। आज भी मैं इकबाल और फैज की शायरी की किताबों का मुतालिया करता रहता हूँ। अख्तर रज़ा साहब, फैज एक मुहिबे वतन इंसान थे। इस सिलसिले में आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? फैज अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते थे और जिन मुहिबे वतन पर जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, फैज उनका हमदर्द बनकर उनकी रहनुमाई करते रहे। मसलन वो कहते हैं, चांदनी रातों का बेकार धकता हुआ दर्द, दिल की बेसुध तरफ जिस्म की मायूस पुकार, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। ऐ नौजवान, अपने वतन से इस तरह मोहब्बत करो और अपने हम वतनों से भी मोहब्बत करो और हमेशा सब करो। शुक्रिया अख्तर रज़ा साहब कि आज आप हमारे स्टूडियो पर तशरीफ लाए। आपका भी और हम FM का भी शुक्रिया। सामीन इकराम, आज का ये अदबी प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो रहा है। फैज के इस आखिरी शेर के साथ आपसे रुखसत हो रही हूँ। मकाम फैज कोई राह में चचा ही नहीं, जो कुएदार से निकले तो सूबेदार चले। अगले हफ्ते इसी वक्त एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। और अब एक बार फिर चकदम्बी एसएस से तशरीफ लाई हुए आरिफा चोइचू और शाजिया बीबी सेलची। मुअज़्ज़िज़ सामीन आदाब, हर शनिचर की तरह एक बार फिर हाजिर है आपकी मनपसंद मेज़बान आरिफा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि आप हम कलाम रेडियो सुन रहे हैं और प्रोग्राम का नाम है अमल पैहम। आज हम जिस बुलंद पाया शख्सियत और अदीब के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, वो मज़लूम और इस्तिसाज़दा अवाम के दिलों की धड़कन है और उनको इनकलाब और रुमान का शायर कहा जाता है। सामीन, शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस अदीब का तज़किरा कर रही हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि अवामी शायर फैज़ अहमद फैज़ है। जिस तरह आपको पता ही है कि हर हफ्ते हम यहाँ पर किसी शख्स को ज़रूर दावत देते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज जो नामवर शख्स हमारे माबैन तशरीफ फरमा है, वो पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के एक प्रोफेसर है। आइए उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सामीन को अपना नाम बताएं। जी, मेरा इसमें शरीफ अहमद खान है। आप कितने सालों से उर्दू पढ़ा रहे हैं? गुज़िश्ता 20 सालों से इस काम को सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत खूब। आप पहली मर्तबा मॉरिशस में आए हैं? जी, पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। अहमद खान साहब, एक दफ़ा यूट्यूब पर मैंने देखा था कि पाकिस्तान में मुनक़िदा किसी प्रोग्राम में आप फैज़ अहमद फैज़ के मुतालिक बात कर रहे थे। वाकई बहुत दिलचस्प था। जी, दर हकीकत मेरे मकाले का उन्वान ही फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पर मबनी था। इसीलिए अभी तक मैं उनकी शायरी और तसानीफ पर तहकीकी काम कर रहा हूँ। वाकई आप में बहुत लगन है। अहमद खान साहब, आप सामीन को बताएंगे कि फैज़ को क्यों शायर इनकलाब और रुमान कहा जाता है? जी, फैज़ महबूब की खलेरी जुल्फ़ों से मोहब्बत करते
متعارف ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کو ماں سمجھتے ہوئے اس کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فیض کی خواہش تھی کہ لوگوں کو آزادی سے جینے کا حق دیا جائے۔ فیض کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی محض پھولوں کی سیچ نہیں بلکہ یہاں ہر سو بے رنگی خزاں بد نصیبی اور افلاس کا ڈیرا ہے۔ آپ جابر روزاری اور مفاد پرست حکمرانوں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ آپ کہہ